Hello student, welcome to history class. So as we have already started our third chapter, that is kinship, caste and class, early societies around 600 BCE to 600 CE, right? So we have already discussed two important subtopic from this chapter, that is kinship and caste, and we have recently started our third subtopic, that is class, right? So let's move. So our third, third subtopic is that beyond birth, resources and status, that is class. Okay, that means rich, poor. Okay, apart from that, okay, we have discussed how the property was accessed according to the gender. There are some rules and regulations for each gender, that is male and female. Okay, at the same time, apart from gender system, there is other rules and regulations for varnas. They have to follow certain criteria to access to property, right? So today we are going to discuss our a third point from this subtopic, beyond birth, resource and status, and that is an alternative social scenario, sharing wealth. ठीक है, सो ये पॉइंट पढ़ के ही, लाइक an alternative social scenario शेयरिंग वेल्थ, ये पढ़ के ही आप लोगों को लाइक थोड़ा आइडिया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लाइक वेल्थ शेयर करने का दूसरा तरीका भी सोसाइटी में क्या किया था, लाइक वहाँ पे भी दूसरा सिनेरियो था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So far we have been examining situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. However, there were other possibilities as well. However, there were other possibilities as well. Situations where men who were generous were respected, while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised. One area where these values were cherished was ancient Tamilakam, where, as we saw earlier, that is in chapter 2, there were several chiefdoms around 2000 years ago. Amongst other things, the chiefs were patrons of bards and poets who sang their praise. Poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminated social and economic relationships, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were also expected to share. So as we have already told कि society में क्या था, like sharing of wealth, apart from gender and the Varna system, there are other alternative as well. Okay, so सोसाइटी में स्टेटस कैसे क्लेम करते थे, स्टेटस वर क्लेम अकॉर्डिंग टू द वर्ना, ईदर बाय बर्थ, ओके, ईदर बाय द लाइक एक्सेस ऑफ, मैंने बोला था एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज दे हैव एक्यूमुलेटेड. ठीक है, जितना आप रिच हो उतना ही आपका सोशल स्टेटस क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, है कि नहीं. पर सोसाइटी में ऐसा भी था कि यहाँ कहीं कहीं लाइक एक गरीब आदमी ही क्यों ना हो, पर वो जेनरस काइंड हो, राइट, उसको क्या कहते हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता था. वेराज एक बहुत रिच आदमी हो, ठीक है, पर वो रिच आदमी हो फिर भी उसको क्या नहीं मिलता था, रेस्पेक्ट नहीं मिलता था. लोग उसको क्या करते थे, नापसंद करते थे. डेस्पाइस का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है, हेट तो नहीं पर थोड़ा बहुत नापसंद करना, ठीक है. सो ऐसा भी होता था. देखिए अभी बोल रहे हैं कि सोसाइटी में स्टेटस कैसे असाइन करते हैं, तो हमने बोला कि थ्रू वेल्थ, है कि नहीं, उन लोगों का स्टेटस होता था. पर उन लोगों को पसंद भी उन लोगों के वेल्थ से ही करते थे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो ये सभी चीज़, ओके, ये सभी चीज़ स्पेशली तमिल, ओके, तमिल टेक्स्ट में मिला गया था. स्पेशली
हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में तमिल संगम टेक्स्ट में पढ़ा था। जैसे वो क्या करते थे लाइक पोइट्स वगैरह, जैसे लाइक बाथ्स का मतलब होता है लाइक प्रोफेशनल लाइक सिंगर और पोइट, उसको बोलते हैं बाथ्स का मतलब, ठीक है। बात का मतलब ओके प्रोफेशनल सिंगर और पोइट जो लाइक गाते हैं, ठीक है, लाइक गाते हैं, पोइट लाइक नैरेट करते हैं, उनको बोलते हैं। तो स्पेशली इस चीज़ के बारे में लिखा गया है कि लाइक रेस्पेक्ट कैसे मिलता था उन लोगों को, लाइक लोग एक आदमी से कैसे अट्रैक्ट होते थे, उनको प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, सोशल स्टेटस, वेदर ही इज़ पुअर बट हिज स्टेटस इन द सोसाइटी वॉज वेरी हाई, ओके। ऐसा वाला कहाँ पे हमको लाइक एविडेंसेस मिला है, स्पेशली तमिल टेक्स्ट में मिला है, ओके। तमिलकम में ये चीज़ लिखी गई थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि संगम टेक्स्ट में पढ़ा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 BC क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीफ और चीफडम्स का भी क्या हुआ था, इमरजेंस हुआ था। जैसे ये चीफ कौन थे, हमने क्या पढ़ा था, चोलास, चीरास, पांड्यास पढ़ा था या नहीं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस चीफडम्स, है कि नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग छोटे छोटे ग्रुप में होते थे और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, ओके। ये उन लोगों को लाइक वो लोग क्या करते थे, ये वो लोग राजा वगैरह को सपोर्ट सिस्टम की तरह क्या सपोर्ट देते थे, और इन रिटर्न ऑफ दैट सपोर्ट ये चीफ क्या करता था, राजा के रिटर्न में राजा से क्या मिलता था, उसको बहुत ज़्यादा पैसा लाइक रिवॉर्ड वगैरह, गिफ्ट वगैरह मिलता था। और वो चीफ क्या करता था, वो रिवॉर्ड अकेले ही क्या नहीं करता था, अकेले ही यूज़ नहीं करता था, वो क्या करता था अपने लोगों के साथ, अपने किन फोक के साथ क्या करता था, शेयरिंग करता था। और उस शेयरिंग के बदले वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ क्या करते थे, प्यार से बैठते थे और क्या सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते थे, है कि नहीं। तो हमने ये सब चीज़ के सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके थे, है कि नहीं। तो इसी संगम लिटरेचर के लिटरेचर की हेल्प से विल गोइंग लाइक वी विल लाइक इट विल हाईलाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप that was existed, okay, during that period, and the relationship between the rich and the poor, okay, through the help of the Tamil Sangam एंथोलॉजी। सो एंथोलॉजिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जहाँ पे एक नहीं दो नहीं पर बहुत ज़्यादा पोएम का कलेक्शन होता है, उसको स्पेशली क्या बोलते हैं, एंथोलॉजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लाइक इंसिडेंसेस वगैरह, स्टोरीज वगैरह थ्रू दिस एंथोलॉजीज नैरेट किया गया है। तो इसके हेल्प से भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड, स्पेशली रिगार्डिंग द क्लास, ओके। सो यहाँ पे एक ओके इसके ही नाते से एक स्टोरी दिया गया है, ठीक है। स्टोरी का नाम है द पुअर जेनरस चीफ। सो यहीं से पता चलता है कि एक चीफ था, पर वो क्या था, पुअर था बट जेनरस था, दैट मीन्स काइंड था, ओके। सो this story was in the composition name पूरा नारू बोलने वाला एक कंपोजिशन में था, विच इज द एंथोलॉजी, ठीक है। तमिल एंथोलॉजी था पूरा नारू, इसमें लिखा गया था, ठीक है। एक बार्ड ने क्या किया था, एक बार्ड को मैंने बोला एक प्रोफेशनल सिंगर अ पोएट, जिसने अपना पेट्रोन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फैन, like I'm a big fan of शाहरुख खान, I'm a big fan of what, सलमान खान, like that पेट्रोन था, एक बार्ड का एक पेट्रोन था। और उस पेट्रोन के बारे में उस बार्ड ने दूसरे लाइक उसके कुलीग के साथ और फ्रेंड के साथ शेयरिंग किया था कि वो लाइक कैसा था, ठीक है। सो ही दैट इज द पेट्रोन डज नॉट हैव द वेल्थ टू लैविश ऑन अदर्स एवरी डे। सो जो पेट्रोन था वो बाट का वो इतना रिच भी नहीं था जो वो अपना पैसा सोसाइटी में ऐसे क्या कर सके, लुटा सके। और he like nor does he have the pittiness to say that he has nothing and so reuse। so इतना गरीब भी नहीं था और इतना लाचार भी नहीं था कि वो ऐसा भी बोले कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक दैट वो पेट्रोन, ठीक है। मे बी ही इज अ चीफ। He lives in Irantai and is generous. He is an enemy of the hunger of baths. That means वो एक छोटे से जगह में रहता था पर बहुत ज़्यादा क्या था, generous था।
और वो क्या करता था, बात, दैट मीन्स वो जो पोएट वगैरह थे राजा के, लाइक जैसे मैंने बोला ना, जैसे लाइक हरिसेना था समुद्र का कुत्ता, वो क्या करता था, राजा के बारे में कोट पोएट था, वो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखता था, राजा को बहुत क्या कहते प्रेस करके, ऐसे ये बाज वगैरह बहुत अच्छा अच्छा लाइक कंपोजिशन वगैरह करता होगा, तो इसीलिए वो चीफ को ये बाज बहुत पसंद थे, तो वो बहुत प्यार करता था, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि जो एक भी बाज भूखा नहीं रहने देता था, इसका मतलब इनिमी टू द हंगर ऑफ बाज, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि वो क्या था, बाज का फैन था, पेट्रॉन था। तो इफ यू विश टू केयर योर पॉवर्टी कम अलॉन्ग विथ मी, बाज हुज लिव्स आर सो स्किल्ड। तो वो पेट्रॉन ने बात को बोला कि तुम यदि अपना पॉवर्टी, जो आपका दुख है, आपका जो गरीबी है, मिटाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ आओ। किसने बोला, वो पेट्रॉन ने बोला। Like if we request him, showing him our ribs, then with hunger he will go to the blacksmith of his village and will say to that man of powerful hands, shape me a long spear for war, one that has a straight blade. So हम उसी पेट्रॉन लाइक उसी चीफ के पास सपोज हम जाए और बोले कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास बहुत हमें बहुत गरीबी देखना पड़ता है, तो वो बात को पसंद नहीं आएगा वो चीज़। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जाके क्या करेगा, विलेज के एक का जो हथियार बनाता है, ब्लैक स्मिथ, फलाम का लाइक आयरन का काम करता है, ठीक है। तो उसको जाके बोला कि मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए एक बड़ा सा स्वॉर्ड बनाओ, तलवार बनाओ। इसका मतलब है कि ये बात को बचाने के लिए, इन लोगों को अच्छा सा जिंदगी देने के लिए, इन लोगों को पेट भर के खाना देने के लिए, ये जो चीफ था, जो लाइक पेट्रॉन था, वो क्या करने, इन लोगों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार था बाहर जाके, ठीक है। वो क्या करना चाहता, इन लोगों को अच्छी लाइफ देना चाहता था। वेरस वो रिच नहीं था, वो पेट्रॉन रिच नहीं था, वो क्या था, काइंड था, अच्छा था, वो शेयरिंग करना चाहता था। दिस इज द थिंग कि वो गरीब होके भी क्या करता, शेयरिंग करना चाहता था उसके पास जो भी है। तो इसके लिए यहाँ से हमें पता चलता है कि इस टॉपिक का मतलब क्या था, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। तो स्टोरी का मेन पॉइंट ही ये था, ठीक है। तो एक जेनरस चीफ, लाइक पुअर जेनरस चीफ था, ठीक है, जो बाट का बहुत ज़्यादा फैन था। वो बाट को क्या नहीं, भूखा नहीं देख सकता था, दुख में नहीं देख सकता था, और उसके लिए क्या भी कर सकता, उसके लिए मर भी सकता था, और उसके लिए लड़ाई कर भी कर सकता था, ठीक है। तो ऐसा वाला था जो क्या करता था, शेयरिंग में बिलीव करता था, जो प्यार में बिलीव करता था, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ये है लाइक हाउ हैज द स्कल्पटर shown the differences between the chief and his followers। आप देख सकते हो, दिस मे बी अ चीफ और फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स देखिए। तो चीफ को एक स्कल्पटर ने कैसे डिपिक्ट कर दिया, चीफ बहुत बड़ा है और उसके हाथ उसके फॉलोअर के सर में, दैट मीन्स ही इज द प्रोटेक्टर, उनके प्रोटेक्टर जैसा, लाइक उसके गॉड फादर जैसा, वो क्या कर रहा है, उनके फॉलोअर को प्रोटेक्ट करने का लाइक सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है ना। सो ये स्कल्पचर, ओके, स्कल्पचर कहाँ का है, ये स्कल्पचर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिला था, 2nd सेंचुरी CE पुराना है, ओके। उसमें क्या है, एक चीफ और एक फॉलोअर है जो स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और आई होप आपको ये लाइक मेरा पॉइंट और वट एवर आई हैव डिस्कस समझ आया होगा कि अपार्ट फ्रॉम लाइक अदर things in society, that is gender, that is varna, right, there are other scenario in the society as well, okay। so this was the scenario, so I hope आपको थोड़ा लाइक समझ आया होगा कि सोसाइटी में दूसरे लोग भी थे जो शेयरिंग ऑफ वेल्थ में विश्वास करते थे ड्यूरिंग द पीरियड from 600 BCE to 600 CE। So today I'll wrap up my class here and I hope आपको कुछ confusion हो और कुछ आपके पास कुछ question हो तो please drop your question in the comment box below। Thank you very much and have a very nice day।